नानक आखे रे मना, नानक आखे रे मना, नानक आखे रे मना। बैठा कड वही, बैठा कड, बैठा कड वही, बैठा कड वही। सुनी है सिख सही, सुनी है सिख सही, नानक आखे रे मना, नानक आखे रे लिखा रब मंगे सिया,
तलबा कौन सन आया, तलबा कौन सन बाकी जिना रही, बाकी जिना रही, अज़राइल फरिश्ता, नानक आखे मना, नानक आखे मना, सुनी है सिख सही, सुनी है सिख सही।
नानक आखे रे मना नानक आखे रे सुनिए सिख सही सुनिए सिख सही लिखा रब मंगेसिया बैठा कड वही बैठा कड वही बैठा कड श्लोक महला तीजा मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना मूर्ख के क्या लक्षण है क्या मूर्ख का करना मूर्ख ओजे मुगध है अहंकारे मरना एक कमाणे सदा दुख दुख ही में रहना आत्म प्यारा पाए के संयम करना गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना हर नाम जपे आप उधरे ओस पीछे डूबदे भीतरना नानक जो तिस पावे सो करे जो दे सो सहना जो दे सो सहना नानक आखे रे मना नानक आखे रे सुनिए सिख सही सुनिए सिख सही लिखा रब मंगेसिया बैठा कड
पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रब रेया सब आप है, हर का सब शरीर है, हर रब रेया सब आप है, हर की कीमत ना किछ कहन न जापै, किछ कहन न जापै, गुर प्रसादी सलाहिया, गुर प्रसादी सलाहिया, हर भगती रापै, हर भगती रापै, सब मन तन हरिया होया, सब मन तन हरिया, अहंकार गवापै, अहंकार गवापै, सब किछ हर का खेल है, सब किछ हर का खेल है, गुरमुख किसै बुझाई, गुरमुख किसै बुझाई, गुरमुख किसै बुझाई, गुरमुख किसै बुझाई, गुरमुख किसै बुझाई। लेखा रब मंगे सिया, बैठा कद वही, बैठा कद वही, बैठा कद वही, नानक आखे हे मना, नानक आखे हे मना, सुनी है सिख सही, सुनी है सिख सही, नानक आखे हे मना, नानक आखे, नानक आखे, नानक आखे मना। प्यारी साध संगत जी, असी जो शब्द पढ़िया इसका सिरलेख है रामकली की वार महला तीजा। ये वार है और असी सब बाणी पढ़ते हाँ, बाणी खोजते हाँ तो सानू पता लगता है वार दरअसल पौड़ियां का संग्रह होता है। गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु नानक पातशाह जी की जुगत अनुसार वारां दे नाल श्लोक लगाए गए, जिमें कि असी आसा की वार पढ़ते हाँ। वार श्लोकां नाल, श्लोक भी मैले पहले के लिखे। वार गुरु नानक साहब दी है, आसा की वार। कई सज्जनों को भुलेखा पै जाता जिस तरह कि वो महला चौथा दी वार है, दरअसल आसा की वार पौड़ियाँ गुरु नानक साहब दियाँ ने। आसा महला पहला, वार श्लोका नाल। श्लोक भी मैले पहले के लिखे,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਰ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੇ। ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਜੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਮਿਲਾ ਕੇ 1.5 ਪੰਕਤੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ, ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਖੋਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਦੇ, ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਮਹਿਲੇ ਚੌਥੇ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਮਹਿਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਲਗਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਟੌਪ ਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਧੁਨੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ, ਘਰ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਾਗ ਦੇ ਤਾਲ ਦੀ ਪਿੱਚ, ਕਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਧੁਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗਾਣੀ ਆ। ਧੁਨੀ ਹੈ ਜੋਧੈ ਵੀਰੈ ਪੂਰਬਾਣੀ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕੋਈ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਗਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਿ ਜੋਧੈ ਵੀਰੈ ਪੂਰਬਾਣੀ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਮ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਹੋਂ ਚੇਰੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਸ ਤੋਂ ਜਾਏ ਸੋ ਰੋਵਤ ਆਵੇ, ਰੋਵਤ ਜਾਏ ਸੋ ਹੱਸੈ, ਬਸ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸੋ ਉਜੜ ਹੋਏ ਸੋ ਬਸੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜੇ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਨਾ ਹੱਸਦੇ ਨੂੰ ਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਸ ਤੋਂ ਜਾਏ ਸੋ ਰੋਵਤ ਆਵੇ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸਾ ਬਲੇਮ ਲਗਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਨ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੈਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਭਗਵਾਨ किसी को धरती से उठाकर आकाश पे चढ़ा देता है, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे, राजा के भिखारी बना देता है, किसी को भिखारी से राजा बना देता है। इस तरह असी रब दे बारे इतनी क्रूएलिटी वाले अर्थ अपने हिरदे अंदर, अपने सोचा शक्ति दे अंदर, अपने थॉट प्रोसेस दे अंदर, अपने बिहेवियर दे अंदर बना के बैठे हुए हैं। इस कारण असी अर्थ यही समझते रहते हैं, 10 वस्तु ले पाछे पावे, तेरे पास 10 चीज़ें वो लेके तू पीछे रख लेता है। 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक बस कारण बिखोट गवावे। अगर एक नहीं मिलती है तो बहुत रोता है। बिखोट दे अर्थ सानू पता नहीं ने, आप ही बनाए हुए ने असी।
एक नहीं देता तो तू रोना शुरू कर देता है। अगर भगवान एक भी ना दे और ये जो तेरी 10 है ये भी छीन ले, फिर कैसा क्रूएलिटी वाला असी रब जी पेश करते हैं। इस करके अज दा बच्चा साडे 100 कार्ड बयान किए हुए रब जी तो मुनकर है। वो कहता धर्म कर्म की क्या जरूरत है। क्यों? क्योंकि असी मम्मी पापा जेडे बने हुए हैं, असी बच्चे को कहते हैं ये तेरे को चॉकलेट ले दी है ना, अच्छा ये कहना मानेगा तो चॉकलेट ले देंगे, ये कहना मानेगा तो ये टॉय ले देंगे। लेकिन अगर तूने अब दूध ना पिया और ये होमवर्क ना किया तो ये जो लिए हुए ना खिलौने ये भी छीन लेंगे। फिर यह साडा बिहेवियर है। ऐसी बचपन तो बच्चे नूं रिवार्ड और पनिशमेंट की प्रैक्टिस की, क्योंकि सानू आदतां पईयां होईयां। कुछ मैं करा मैनू उहदा रिवार्ड दिओ और कुछ जे मेरे को गलत होई तो उहदी पनिशमेंट दिओ। मेरी आदत तो है कि मैं कार तेज़ चलानी है, पर जे पुलिस वाला मैनू पनिशमेंट करेगा फिर मैं डर के नहीं चलावांगा। वैसे मेरी कार तेज़ चलाने की आदत है, पर क्या करें जगह जगह कैमरे लगूंगा, इस करके मैं डर के स्लो चलाता हूँ। वैसे अंदर से मैं मानने वाला नहीं हूँ, अंदरों मैं वही हूँ हाँ जेडे लाहौर भैड़े पिशौर भी भैड़े। ये सारिया गल्लां की ने? ये सारिया गल्लां ने जैसे मेरे ख्याल हैं मैंने वैसे वाला भगवान तसव्वुर कर लिया है। एज इफ जिमें कि असली रब मैं मार ही दिता है। क्यों? क्योंकि मैं रब क्रूअल पेश किया है। मैं रब पेश किया मरने के बाद सजा देता है। तो मैं ऑफिस की आदत पई हुई है रब जी स्लो, असी ऑफिस ना काम स्लो करते हैं। बड़िया बड़िया पुरानिया फाइलों पई होंदियां 8-8 10-10 15 साल पुराने केस पे होंदे ने, कोई करता नहीं है। असी वैसे वाला रब जी बना लिया। गलती तुसी अज करो, रब जी के ऑफिस फाइलों पईयां रहिंदियां, रब जी सुत्ते रहंदे ने मस्त। तो जदों तुसी 60 70 80 90 साल बाद मर जाओगे फिर रब जी फाइल खोलणगे। कैसा लिथार्जिक, कैसे सुते हुए रब जी असी पेश किए। फिर नाल कहता वो भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। देर क्यों है भाई? क्योंकि तू मानता है देर है। तेरे घर सदा सदा है न्याओ, ऐ कर करे सो ऐ कर पाए। रब जी सोंदे नहीं हैं, सतगुर जागता है देव। ये मैं टूक मात्र बेनती कर रहा कि असी कल ये शब्द पढ़िया तो असी खुद हैरान हो रहे सी कि ये अर्थ नहीं हैं कि रब जी हसदे नूं रुवा देंदे ने, रोंदे नूं हसा देंदे ने। रब जी जिहड़ा वसिया होया है जिहदा घर है ना उहदा घर उजाड़ देंदे ने, भूचाल लिया देंदे ने, ढा देंदे ने, सुनामी लिया आते ने, क्रश कर देंदे ने, किसी को तुड़वा देंदे ने। राइट्स के अंदर किसी को झगड़ा करके तुड़वा देंदे ने, वसिया होए नूं उजाड़ देंदे ने, ते जिहड़े झुग्गी झोपड़ी वाले ने उन्हां नूं वसा देंदे ने। और कल मैं एक गल कोट भी की सी कि एक सज्जन मैनूं कहंदे ने तुहानूं पता है रब जी का की काम है? मैं क्या कि कहते एक बहुत बड़ा स्कॉलर दस के गया। मैं क्या अच्छा कौन है वो स्कॉलर? उन्होंने ना नहीं लिया, मैनू पता नहीं क्योंकि मैं सुनिया नहीं सी। कहते जी स्कॉलर ने दसिया कि जदों गुरु नानक साहब मक्के मदीने गए तो उत्थे दे शेख पीर फकीर दस्तगीर जो भी सी उन्हें पूछया कि रब का की काम है। उन्होंने कहा तू अपने सिंघासन तो थल्ले आ, उन्होंने थल्ले उतारिया, आप जाके सिंघासन पर बैठ के और उन्होंने कहा रब का ही काम है। जेडे कुर्सी पर बैठे होंगे उन्होंने ला देंगे ने, थल्ले वालों को कुर्सी पर बिठा देंगे ने। राजा तो भिखारी कर देंगे ने, भिखारी तो राजा कर देंगे ने। ये तो वैसे इलैक्शन ही लोग कर ही देंगे ने। जो लोग करते हैं जिसको मर्जी कुर्सी से वोट छीन के बिना वोट दिए उतार देते हैं और जिस मर्जी को वोट दे के कुर्सी पर बिठा देते हैं। ये वाला काम रब जी का असी तसव्वुर किया है, दैट काइंड ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि असी सतगुरु जी पातशाह को पूछया नहीं है वट काइंड ऑफ गॉड तुसी मैनू समझाना चाहते हो। गुरु पातशाह तो पहला वाला रब वो समझते सी खुदा 7वें आसमान पर रहता है, नीचे आता ही नहीं है। फरीद जी जिन्होंने असी मुसलमान कह रहे हैं वो बयान करते ने फरीदा खालक खलक में, खलक वसे रब माए मंदा किसनों आखी जा तिसबिन कोई ना है। फरीद जी कहते फरीदा जंगल जंगल क्या भावें मणकंडा मुड़े वसी रब हियाली है, जंगल क्या ढूंढे रब तेरे हिरदे च वसदा है। फरीद जी तो नहीं कह रहे ने 7वें आसमान ते रहिंदा है। 7वें आसमान वाला जदों गुरमत रब जी नहीं मनती ना
तो साडा एक भुलेखा लथ जाना चाहिए कि मरने के बाद कहीं बैकुंठ कहीं परलोक में भगवान जी रहते हैं। यह साडा भुलेखा है। रोज गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, इतने लंबे चौड़े आडंबर करके 108 101 अखंड पाठ रखा देंद्या, इतनी एनर्जी लगा देंद्या, इतना पैसा लगा देंद्या, इतने सारे प्रबंधक और इतने ट्रैफिक जैम करके इतनी मेहनत कर दिया, पर अंदरों पूछते नहीं है तुसी इस पाठ के अंदर क्या किया। कबीर जी कह रहे हैं मैनू तो नहीं पता, तुहाडा ना जाना ना जाना बैकुंठ कहाँ है, बैकुंठ कहाँ है, जा 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 सब कहता है, सब कहता ना जाना जिसका 101 खंड पाठ रख के, जिस बाणी का कीर्तन करके असी सारी दुनिया नू नगर कीर्तन कढ़ के दिखा लिया कि यह गुरु ग्रंथ साहिब है, उहदे च कह रहे हैं कि मैं बैकुंठ नहीं जानदा, तुहाडा मरण तो बाद जिहड़ा तुसी 7वें आसमान ते मनदे हो। पर असी ते सारे मन के बैठे हैं जब मर जाएंगे भगवान जी के घर जाएंगे, ऊपर रहते हैं भगवान जी, कहीं पैराडाइज में, कहीं स्वर्ग में, कहीं परलोक में, कहीं बैकुंठ में, कहीं सचखंड में। कबीर जी बयान कर रहे हैं रब पता कितने रहते हैं। कहो कबीर को कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आए, साध संगत बैकुंठ आए, सब कहता ना जाना ना जाना बैकुंठ कहाँ है, बैकुंठ कहाँ है। कबीर साहब साफ कह रहे हैं मैं नहीं जानता। गुरु साहब भी कहते हैं धर्म राय दर कागज फाड़े जिन नानक लेखा समझा। गुरु साहब पातशाह बाणी अंदर कह रहे हैं सुर्ग बास न बाछिए, डरिए न नरक निवास, होना है सोएगो मन न कीचे आस। कवन नरक क्या स्वर्ग विचारा संतों दो राधे, हम कहूँ कि कौन न कटते अपने गुरु प्रसादे। कहते मैनू नहीं परवाह के कोई स्वर्ग होंदा या नरक होंदा, स्वर्ग जान दी इच्छा कोई नहीं है, नरक जान तो डरता नहीं है। कैसा स्टॉन्चिंग सच है, कितना भारी रिवोल्ट है एक पाखंड दे अगेंस्ट, एक अंधविश्वास दे अगेंस्ट कि रब उपर किधरे नहीं रहिंदा, धरती च रहिंदा है, अज रहिंदा है, हाज़र नाज़र है, जै तिर देखा तै तिर मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट है, बलिहारी कुदरत वसिया रहिंदा है। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, एक गुरमत दे माइलस्टोन्स ने, एक गुरमत दे कीमती फंडामेंटल्स ने जिहड़ी सारी दुनिया नू ये सोचण ते मजबूर कर देंदे ने तुसी किस मजहब नू मनदे हो, किहड़ी थ्योरी मनदे हो, पर ये मनना पेगा इस सृष्टि विच रब जी रहिंदे ने। हर मनुख दे अंदर भगवान रहता है। सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रहे। एक गुरमत दे बहुत रतन जवाहर माणिक वर्गे कीमती कीमती माइलस्टोन्स ने जिन्हां दी विचार असी कदे कीती नहीं। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ कल शब्द समझ रहे ਸਾਂ कि ਉਹ ਰੱਬ जी बारे नहीं कह रहे ने, ਜਿਹੜਾ मेरा मन सच पासे टुर पैंदा है ਉਹਨੂੰ फिर समझ आ गई है तो मत बयान कर रही है भी ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, मैं भी ਉਹਦੀ तेरे संतन की हो चेरी, मैं भी ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ लगदी हाँ। क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो दुनियावी हसन खेडण वाली पखंड होंदा है ना, शैलो बिरती वाला, उस तो छुट जाइदा है। हस तो जाए सो रूबत आवे।
फिर विरागमई हो जाइदा है। ते रोवत जाए जो दुनियावी तौर पर घाटियां च निक्की निक्की गल ते रोंदा रहिंदा है, अपसैट रहिंदा है, वो हस्सै, उन्होंने नानक भगता सदा विकास वाला जीवन समझ आ जाता है। वर्ल्डली थिंग्स धरती ते जिहड़ा रहिंदा है सिर्फ धरती च चीज़ां ते अटैचमेंट आकाश चढ़ावे, उहदी मत उच्ची कर देंदे हो। सारे शब्द के अर्थ जदों समझ आए विस्माद आंदा, वाह गुरु जी वाह, यू आर ग्रेट। सानू तो बिल्कुल अकल है नहीं सी, हम कीड़े किरम सतगुर शरण आई, अस कीड़े मकोड़ियां वांगू साडी मत तुहाडी शरण आया, सुमत बख्शो। ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि जदों असी बाणी नूं नहीं विचारते तो असी बोरोड हज़ारां सालां दी पुरानी थ्योरी दे अपने मन अंदर अर्थ बना के गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी उत्ते थोपदे रहंदे आ। ते कल मैं ये भी सांझ कीती सी कि जे गुरु हरराय पातशाह दा गुरपुरब बना रहे हैं, प्रकाश उत्सव मना रहे हैं, उन्होंने नहीं परवाह सी कि जे जो असी इतिहास सुनते हैं कि जदों ये कहा गया कि मिट्टी बेईमान की, तो उन्होंने क्या बाणी दे अखर क्यों बदले, मिट्टी बेईमान की नहीं, शुद्ध बाणी है, मिट्टी मुसलमान की। पर जिहड़े उहदे भाव अर्थ असी समझ के पुट्ठे करते हैं, सानू भी तो कोई पुछे ना की करदा है तू। गुरु हरराय पातशाह का पुरब मना रहे ना, तो अपने बारे विचार करिए कि मैं गुरमत अनुसार कुछ समझदा हाँ, कि मैनू गुरमत अनुसार गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई समझ आया, कि मैं कदी सतगुर की मत लैके बाणी नूं समझण दा यतन कीता नहीं कीता ना। इस तरह ही अज दा ये शब्द साडे सामने आया। ओ जी जदों मर जाओ ना तो रब जी लेखा जोखा करनगे, अज नहीं करनगे। ये जिहड़ी छोटी मोटी साडे चारों पासे सरकार है, छोटे मोटे कानून ने, छोटे मोटे पुलिसमैन ने ना, ये भी जे असी अज कार गलत चलाइए तो सानू 6 महीने बाद नहीं लेखा बना के पकड़ दे। ये भी नहीं परवान कर दे, तुम रेड लाइट आज क्रॉस करो, परसों तुम्हारे से बात करेंगे। ये भी रेड लाइट क्रॉस करन सर कहते उरे आ जा, ये डिले नहीं करते ने, तो रब जी लेखा बाद विच करनगे। क्यों? क्योंकि असी सुनिया होया मन्निया होया कि जब मर जाएंगे फिर भगवान जी लेखा करेंगे, और फिर लेखे में अगर तेरे कुछ गलत हुआ तो फिर जम आएंगे और तेरे को सताएंगे और नरक में तेरे को ऐसे सजा देंगे। ऐते डरा डरा के डरदी रब रब करदी सिखाते हैं सानू। बहुत कीमती शब्द है अज दा, पर असी इसनू कोट कर देंगे। वो देखो जी नानक आखा रे मना सुनिया सिख सही, लेखा रब मंगेसिया, भगवान मांगेगा बैठा कट गई, वहाँ पर वो खाता रख के बैठा हुआ, यहाँ नहीं आता वैसे, पर खाता वहाँ रख के बैठा हुआ मुंशी की तरह। कैसा लोगन राम खिलौना जाना सी बयान करते रहते हैं, नाल पढ़ी जा रहे हैं तेरा घर सदा सदा है लिया। सत संगत जी, बाणी की बनतर के अंदर जदों जाते हाँ तो वार का सार पौड़ी विच होंदा है। अज की पौड़ी, इसकी आखिरी पंक्ति, सब कुछ हर का खेल है, गुरमुख की सह बुझाई। गुर दे मुख दे खखे नूं स्यारी लगी हुई है, किसी इंसान की गल नहीं चल रही। गुर मुख, मुख दे खखे नूं स्यारी, मुख तो निकली हुई आवाज़, सुनिया सद्दा। इसनूं वही कहते हैं, बैठा कड वही, दाते दात रखी हथ अपने। ये जिहड़ी उन्हें अपनी दात, अपनी गुरप्रसाद सारियां वास्ते ओपन बारिश करके खुले भांडे च इस तरह रखी हुई है ना, यह वही है। इसका मैसेज जिसनों पसंद आता है वो ले लेंदा है, जिसनों पसंद नहीं आता है वो इसनों इग्नोर कर देता है।
पर इसकी मत, ਇਹਦਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਇਹਦਾ ਐਸੈਂਸ ਜੋ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਸ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਈਕੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸੀ ਤਾਕਤ, ਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤਰੀ ਦਾਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹ ਕਰਮਾਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਤੁੱਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੇਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇੰਜ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਕੰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੰਡ ਪਕੜ ਕੇ ਪਿੱਠੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋਚਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬਦਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਡਿਮ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सोचनी बदल गई, बाहर से देखने से कैसा है डजेंट मैटर, बाहर से स्टेटस क्या है डजेंट मैटर, पर सोचनी बदल गई, मनुख बदल गया, वन इज ट्रांसफॉर्म्ड। सोचनी बदल देना सब तो वड्डी करामात है। लोकी करामात समझते ने वो पानी ते टुर पिया, लोकी समझते ने वो हवा में उड़ गया, लोकी समझते ने गायब हो गया, लोकी समझते ने वो पेड़ पे चढ़ गया, बॉडी जमीन पे रही। लोकी निक्कियां 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 बोगस सुपरफ्लूअस अनफ्रूटफुल एक्सरसाइज नूं करामात समझते ने, पर सब तो वड्डी करामात है हाउ टू लिव सिंपल, गरीबड़े सुभाव वाली, सादगी वाला जीवन। ये बहुत वड्डी करामात है कि तू पानी ते टुरन दी बजाए, तू हवा च उड्डण दी बजाए धरती ते टुरना सीख। जदों धरती ते टुरना सीखेगा ना, तेरा दिमाग 7वें आसमान ते चढ़िया होया हवाई गल्लां दी आकड़ विच इन्हां अपने आस पास वाले मनुखा नूं, धरती ते जितने रिक्शा चलाने वाले तो लैके जितने साडे लोड़वंद भैन भरा ने उन्होंने मनुख नहीं तू समझदा। एक करामात है कि तू एक आकड़ वाले सिर ते 7वें आसमान ते चढ़िया होया ना, चढ़े आकाश गिरावे थल्ले आ जा और इन्हां मनुखा दे नाल रल के रिया कर। एक गुरमत दा वंड छकना है, एक गुरु नानक पातशाह जी दी भगती है, ऐसे खाते हैं। सो अज दा शब्द दुनिया दे हर मनुख दे काम आ सकता है, पूरा गुरु ग्रंथ साहिब सारी दुनिया दे काम आ सकता है, बशर्ते कि असी विचार करिए ये मेरी केड़ी साइकी फिक्सअप करता है, मेरा केड़ा नैगेटिव मूड फिक्सअप करता है। अज दे शब्द दे पौड़ी दा रिजल्ट निकलिया। एक गल होर, बहुत लोग बोलते हैं भगवान जी का खेल है, फिर वो गल करते हैं किसी को भिखारी बना दें, किसी को राज करा दें, किसी को जमा देंगे, किसी को मरा देंगे, किसी को अमीर बना देंगे, किसी को भिखारी बना देंगे, किसी को राजा बना देंगे। जी ये भगवान का खेल है, रब जी असी खेडा नहीं खेडते हैं। जदों मेरा मन अपने मन के टकोसले बनाता है उन्होंने कहते हैं दरियावै कन्नै बगला बैठा केल करे। मेरा मन निज घर विच वसदे रब जी दे दरिया दे कोल रहिंदा है, बगला बना रहता है, बगला भगती करता है।
चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित कठोर जीव, बाहर से बगला बगल में छुरी मुंह में राम राम, बारों बारों बगला बनया फिरदा ना तां मेरा मन खेडा खेडदा है। दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे, सच सुनना नहीं चाहता, सच सुनन दी हंसबिरती है दे कोल। आज मैनू इतना समझना है कि सब कुछ हार का खेल है। जदों मेरा मन सतगुर दी मत ले लैंदा ना, यह हार जन बन जाता है। इनू समझाया गया हार जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। जदों मेरा मन रब दी मत ले लैंदा है तां हर जन बन जाता है। जदों ये हर जन बन जाता है, रब जी विच मर्ज हो जाता है। तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तो तू, अब भगवान जी आप है मैं नहीं हूँ। ये मर्ज हो गया, हर जन एक जोत दो मूर्ति हो गया, इकमिक हो गया ना, अपनी मन की मर्जी छोड़ दी। तां इसनूं ये मन किहड़ियां खेडां खेडदा सी, ये सतगुर दी मत राई, गुर दे मुख तो निकली हुई मत राई इनू बूझ बुझाई वाली समझ आ जाती है, ये वाली अकल समझ आ जाती है। हुण सतगुर जी कित्थे रहिंदे ने? सतगुर मेरा सदा सदा न आवे न जाई, वो अविनाशी पुरख है, सब में रिया समाई। जितने लॉजिक्स असी सत्संग दी सांझ करते हैं ना, वो मेरे नहीं होंदे ने, वो मेरे सतगुर पातशाह दे होंदे ने। इस करके असी बाणी चो लॉजिक्स समझते हैं। गुरबाणी दलील भरपूर, सिक्के बंद, 24 कैरेट, 20 विसवे, 16 आने खरा सच, 100% प्योर मैसेज देती है। कोई मिलगोबा उधार जीवन दे, हवाई पुलाव दे, उडरनिया गल्ला नहीं करती। इस जीवन को हकीकत से देखने की नजर बख्शती है बाणी। हकीकत को हकीकत की नजर से देखना ही तो खुदाई पैगाम है। हकीकत नूं देखना, हकीकत नूं समझना। जदों मैं हकीकत नूं नहीं समझदा सी, मैं इनू अमीर समझदा सी, इनू सलाम करदा सी, इनू गरीब समझदा सी, इनू नीवीं जात दा समझदा सी, इहदे नेड़े बहिंदा सी, इहदे नेड़े नहीं सी बहिंदा, अपने आप नूं उच्ची जात दा समझदा सी या अपने आप नूं नीवीं जात दा समझदा सी। पर जब मैंने हकीकत की नज़र से देखा, खुदाई पैगाम मैनूं समझ आया, सब कुदरत के बंदे हैं। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे। हकीकत की नज़र नाल देखिया, यार ये तो सारे मनुख ने यार। फिर यह कोई उच्च जातियाँ नहीं है, यह कोई नीच जातियाँ नहीं है, यह अमीर नहीं है, यह गरीब नहीं है, यह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, गोरा काला, अमीर गरीब, स्त्री मर्द, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गई। हकीकत की नज़र से देखने की, हकीकत वाली सच का इल्हाम समझ में आ गया। जब तो समझ आता है ना, नजरिया बदल जाता है। वन इज ट्रांसफॉर्म्ड, वन गॉट द इनसाइट, वन गॉट द विजन ऑफ सतगुरु जी। रब जी का विजन प्राप्त हो गया। रब जी सब वास्ते बारिश करते हैं, अमीर गरीब वास्ते अलग अलग नहीं करते हैं। किसी मजहब वाले वास्ते की, किसी वाले वास्ते नहीं की, इंज नहीं करते हैं। सब दे नाल बराबर करते हैं ना, बराबरता समझ आ जाती है। एंड वंस वी लिव दैट, फिर वो तत्व ज्ञान समझ आ जाता है। पहला थियोटिकल समझ आता है, वो यस हाँ ये ऐसे ही होता है। फिर जो दोनों प्रैक्टिकल जीण लग पैंदे हैं, फिर असली ज्ञान समझ आ जाता है कि मैनू किवें जीना है। ये ज्ञान नहीं समझ आ जाता समुंदर रिड़किया ते किहड़े 14 रतन निकले, उन्होंने नावां की लिस्ट नहीं समझ आ जाती। ये ज्ञान नहीं समझ आता चांद तारे कितने हैं। ये ज्ञान नहीं समझ आ जाता भविष्य कैसे बनेगा। ये ज्ञान नहीं समझ आता तुम राहु में हो केतु में हो तुम्हारा क्या होगा। ये तो कबूतर भी कट देंदा एक डब्बे चो, तोते भी कट देंदे ने। ज्ञान समझ आ जाता मैनू मनुखता भरपूर जीवन किवें जीना है। सब कुछ हर का खेल है। मन नू सारी खेड समझ आ जाती है।
गुरमुख सतगुर गुर दे मुख तो निकली हुई बात समझ आ जाती। गुरमुख किसे बुझाई, जेड़ा मन इसनूं समझ लैंदा है। ये इस वार दी इस पौड़ी का सार है। निज कर दे अंदर रब जी वसते ने, निज कर विच वसते रब जी दे मुख तो निकली हुई बात नूं गुरमुख कहंदे ने। उसी नूं जपजी साहब दी विचार सांझ करदे असीं सांझ कीती सी। गुरमुख नादंग यही नाद है, लगातार उसनूं सुनना। ये नहीं कि कोई म्यूजिक अलबेलेपन वाला सुनाई देता रहता है। वो जी हम बैठे हुए हैं, कोई म्यूजिक बिना बजाए सुनाई दे रहा है, कोई भी नहीं बजा रहा फिर भी सुनाई दे रहा है। ये सीधा जोगियां वाला होता है, अलबेलापन। सतगुर दी मत दे सुने नूं लगातार सुनते रहना नाद कहलाता है। गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग, निज कर चो जिहड़ी आवाज़ दा सुनिया सुनते हैं ना रब जी दा सद्दा, वो वेद कहलाता है। गुरमुख रिया समाई, गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा, मेरी धरती नूं रोक के रखण वाला, गो रख इसनूं संभाल के टिका के स्टेबिलिटी देण वाला, ਇਹਦੇ अंदर चंगे चंगे गुणों की उत्पत्ति करने वाला गुरु गोरख वर्मा। गुरु पार्वती माई, विकारां दे समुद्र तो पार कराने वाली मत, पार्वती सुहागवती, इटरनल सतगुर दी मत दे नाल इस संसार समुद्र दे विकारां तो पार कराने वाली मत भी सतगुर दी मत। सतगुर कौन है? गुरबाणी में सतगुर है गुर परमेश्वर एको जान। अंदर रब जी वसते ने, रब जी के मुख तो निकली हुई बात नूं तुर की बाणी कहंदे ने। रब जी के मुख तो निकली हुई बात नूं अटल खरा सच कहंदे ने। आज सच जुगा सच है भी सच, ओही ते गुरमुख कहलांदी है, ओही ते सतगुर दे मुख तो निकली हुई बात कहलांदी है। उसनूं सच्ची बाणी कहंदे ने, उसनूं पक्की बाणी कहंदे ने। मेरा मन जिहड़ी बाणी बोलदा रहिंदा उहनूं कच्ची बाणी कहंदे ने। कच्ची बाणी कौन बोलदा? जो मर जम्मे सो कच नहीं कच, कच्चा कच्ची बाणी बोलदा है। सो जिहड़ी निज घर चों आवाज़ निकलदी है ना, उसनूं सही सिक्ख्या कहंदे हन। नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही, सही सिक्ख्या सुनो तां की हो जाता है, सुनन दे नाल जीवन बदल जाता है। नानक आखे रे मना, नानक दे कक्के नूं औंकड़ है। नानक पातशाह अपने ते टुका के अपने मन नूं सुनिया दे रहे ने। सच ए हंबल वे टू कन्वे द मैसेज टू द होल वर्ल्ड। अपने ते टुकांदे ने, बड़े प्यार नाल बयान करते हैं। लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। हुण इसनूं सुनन तो पहला असी पहला उपर श्लोक पढ़ाइए, श्लोक दे असी सिंपल मीनिंग समझ लईए। जदों साडा मन मूर्ख होवे ना, तां जो भी सानू भैड़ी गल सिखाएगा ना, मंदी गल सिखाएगा ना, भैड़ी मंदी नकम्मी ढैंदियां कलां वाली आचरण तो डिगण वाली, उन्होंने जमा दी बुद्धि कहते हैं। मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना। मूर्खां दा कहना सुनदा, मूर्ख दे खक्के नूं औंकड़ नहीं है। मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना। मूर्ख खक्के नूं औंकड़ मेरा मन, जदों मेरा मन मूर्ख है ना, ते मूर्खां दा ख्याल वाले कहने सुनेगा। जिवें साडी बच्ची स्कूल कॉलेज जाए, वो सिंपल कपड़े पाए, नंगेज दे कपड़े ना पाए, बाकी सारियां कहन तू बहुत शरीफ बन गई है, तू भैंजी लग रही है, ऐसे फिर तेरा रिश्ता ही नहीं होएगा। जमाने साज होना चाहिए, है ना। खाइए मन पाउंदा, हंडाइए जग पाउंदा। जदों वो साडी बच्ची उहदे आखे लग जाए मूर्ख है ते नंगेज दे कपड़े पा लैंदी है, मूर्ख है तो डांस चली जाती है, मूर्ख है तो उन्होंने बीयर और शराब के गिलास खड़का लेंदी है, मूर्ख है तो उन्होंने नाल पब दे डांस करती है, मूर्ख है तो रूमां की बेइज्जती कर लेंदी है। मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना। मूर्ख के क्या लक्षण है, हुण उहदे सिम्पटम्स दसन लगे ने। क्या मूर्ख का करना, वो की करते हैं? साध संगत जी इत्थे पहला एक गल होर मैं कर लवां। मूर्ख है नाल ना लुझीए दे अर्थ असी हमेशा ये करते रहंदे सां,
अगर कोई इंसान मूर्ख है उससे बात नहीं करनी चाहिए, पर मैनू हंकार हो गया कि मैं बड़ा सियाणा। गुरु पातशाह कहते ना को मूर्ख ना को सियाणा, ਇਹਦਾ मतलब मैं किसी मनुख ਨੂੰ मूर्ख नहीं समझ सकता। जे मेरे मन अंदर रत्ती मात्र भी ख्याल आता कि फलाना मूर्ख है, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करनी, ਇਹ मेरी हाइट ऑफ हंकार है, ईगो है मेरी, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ कि मैं बड़ा सियाणा। सो किसी मनुख ਨੂੰ नहीं कहते ने मूर्खे नाल ना लुझीए ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है कि ਇਹ वाला अखर पढ़ के बुझ ले, पढ़ अखर यो बुझीए, मूर्खे नाल लुझीए। ये गल समझ ले कि मन मूर्ख है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ पंगा नहीं लेना चाहिए, ਇਹਦੇ ਨਾਲ डायलॉग नहीं करनी चाहिए, ਇਹਦੇ ਨਾਲ गलबात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस ठीक पासे ਤੈਨੂੰ पाएगा नहीं। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝੀਏ। मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना, मूर्ख क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना, हम दसते ने की करता है। मूर्ख हो जे मुग्ध है, अहंकारे मरना। उन एडिक्टेड है, मुग्ध है, अपने हंकार च मस्त है, अपने हंकार च ही दिन रात मरदा रहता है, अपने हंकार जगत जलिया सड़दा रहता है। एत कमाना सदा दुख, दुख दे खखे नूं औंकड़े ते विश्राम देंगे। अपना हंकार दिन रात कमांदा रहता है, सदा दुखी रहता है। पैसा ही नहीं कमाया जाता, हंकार भी कमाया जाता है। एत कमाना सदा दुखी में रहना, अत प्यारा पवै खूह। सारे इंद्रे ज्ञानेंद्रे, इन्हां सारिਆਂ ਦਾ सब तो प्यारा बनया होया मन, ये आप ते खूच पिया होया है। के संयम करना, हुण सोल्यूशन देन लगे ने, हुण होप बना रहे ने कि जे मन खूह विच पै जाए ना, मन अंधकार विच पै जाए, मन जे डूब जाए, सारे कुल, सारे इंद्रे ज्ञानेंद्रे, सारे टब्बर नूं लै डुबदा है। हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। कौन कह रहा? मन। भी मैं तो आप डुब्बा ही हाँ, तुहानू इंद्रे ज्ञानेंद्रे सखियो सहेलड़ियो, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मैं लैके डुबांगा। इंज ही हुंदा ना, जदों साडे घर दा कोई वड्डा पुट्ठे पासे पै जाए ना, तो सारे टब्बर नूं कहंदा शराब जरूर वरताएंगे। सारे टब्बर नूं कहंदा जिवें मैं कवां उंज करो, भावें मन मत होवे, सारे टब्बर नूं लैके डुबदा है ना। इंज मेरे घर दा चौधरी है मन, आप खूच पिया होया है और सारिਆਂ नूं लैके डुबदा है। इस करके असीं 26 जनवरी सैमीनार कीता सी कि जे घर दी पत्नी सीधे पासे पैना चाहती है, पति नहीं उसनूं पैण दिंदा। क्यों? क्योंकि मैं घर का मर्द हाँ। मेरा कहना मानो, भावें सीधे रास्ते जाना है तां भी नहीं जान देंगा, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहता। जे मैनू जाना पिया सीधे रास्ते तो मैनू नम्रता रखनी पेगी, तेरे नाल प्यार नाल डील करना पेगा, तेरे नाल हमदर्दी, नम्रता और प्यार दा इंसानियत वाला वतीरा करना पेगा। वो तो मैनू पसंद ही नहीं है। मैनू तेरे पेके पसंद ही नहीं हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ पसंद करना पै जाएगा। इस करके मैं सीधे राह पैना ही नहीं चाहता। सीधे राह मैं क्योंकि पैना नहीं चाहता, इस करके तेनों मैं सीधे राह जान ही नहीं देना। पर मर्द दा अपना हंकार है, मैं जो मर्जी करा तू नहीं हिल सकती। साध संगत जी, आप दुखी रहिंदा है, अपना हंकार कमांदा है, ते दुखी में रहना सारिਆਂ ਨੂੰ दुखी करदा है। और आप खूच पिया होया है। हुण इस नूं दस रहे की संयम करदा है। जे दुखी महसूस करेगा तां ही छूटेगा ना, जे दुखी महसूस ही ना करे। आज मैनूं किसी ने पूछा सी, वीर जी मैं अपना क्रोध छोड़ना चाहती हाँ, किवें छोड़ा? मैं क्या मैं तुहाडे नाल गल्ली पावांगा, तो तुसीं एकदम कहोगे ना जे बच्चे गलती करन तां क्रोध नहीं करना चाहिए, ना जे कोई करे तो क्रोध नहीं करना चाहिए, ना जे वोटी कहना ना मन्ने या पति कहना ना मन्ने, बच्चे कहना ना मनन, ना कोई गलती करन, तो फिर वीर जी क्रोध तो करना ही चाहिए ना। तुसी जस्टिफाई करना शुरू कर दोगे, तुहानूं ये समझ ही नहीं आएगी कि मैं क्रोध दूजे की गलती की सज़ा अपने आप को क्यों देंदी हाँ। ए ध्यान तो उतर जाओगे, तुसी अपना क्रोध जस्टिफाई करने लग पोगे, तुसी फील ही नहीं करोगे कि ये क्रोध का कंडा मुझे चुभता है। सज़ा गलती दूसरे की और सज़ा मैं अपने आप को देती हूँ। जदों कोई मनुख अपनी खुआरी देखेगा तां उस तो छुटेगा ना।
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜੀ ਆਖਿਰਕਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਭਾਂਡੇ ਤੋੜ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਆਏ ਦਿਨ ਇੰਝ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਨੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈ ਕਿ ਦਰਦ ਨਾ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, दिन रात हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ व्यापै जाको ओट तुआरी, बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे हरजारी, जिमें सप लंबी उम्र ते होंदी है पर अपने जहर नाल दुखी होके पत्थर ते सिर मार के भी अपने जहर नाल मरण नूं तैयार है, लेकिन अपना जहर छड्डदा नहीं है। मेरी ये बिरती बनी हुई है, मनु पहचानना चाहिए कि मेरे अंदर कोई खुआरी है। जिसनों समझ आ जाती है वो फिर संयम करता है। संयम की करता है, स्टेज अवे फ्रॉम ईगो, अपने अवगुणा तो दूर रहता है। फिर अपनी पत्नी नूं पैर की जुत्ती नहीं बनाता है, तो पत्नी पति नूं जोरू का गुलाम नहीं बनाती है, बच्चों नूं अपने दबदबे हेठा नहीं रखता है, चाबियां तिजोरी पैसा प्रॉपर्टी अपने हाथ नहीं रखता है, आज़ाद हो जाता है, इस ख्याल तो छुट जाता है। हुण की होंदा है, गुरमुख होए सो करे विचार। जदों निज घर चों रब जी दा सुनिया सुनता है, उस उत्ते विचार करता है। उस अलिप्त तो रहना, फिर अपना जिहड़ा क्रिएट किया है चिक्कड़ है ना, अपना क्रिएट किया है जिहड़ा नरक है ना, जिन्हों स्वर्ग समझदा है, इस तो उपर उठ जाता है, अलिपत हो जाता है, ये विच रह के भी अनटचड रहता है। जैसे जल में कमल राम मुर्गा ही निशान है। हर नाम जपै आप उधरे, निज करदा सुनिया सुनदा है। हर नाम जपै, रब जी नूं याद रखदा है, रब जी अंदर रहिंदे ने। गुरमुखी जब बुझाई, निज करदा सुनिया सुनदा है। हर नाम जपै, निज करदे सुने नूं दृढ़ करदा है, आप उधरे आप ठीक हो जाता है। वो मन जिहड़ा खुआरी महसूस कर रहा है, एक बारी खुआरी समझ आ जाए ना, एक बारी दूध विच मक्खी समझ आ जाए, तां फिर नहीं पींदा। मैं एक बारी अमेरिका अपनी दुकान ते स्टोर ते खड़े होके एक कस्टमर नाल, उन्हें बहुत उच्चा बोलिया, मैं उस तो भी उच्चा बोलिया, पर सारा दिन मेरा सिर दर्द रहा। उस तो बाद मैं 8 साल स्टोर ते खड़ा होया, मैं कन्ना नूं हथ लाया, माई गॉड, ये आए दिन कोई ना कोई कस्टमर उच्चा बोल जाएगा, तू उहदे नाल होर उच्चा बोलेगा, सारा दिन सिर दर्द रहेगा। नहीं, अब जितना मर्जी बोल जाओ, मुझे कुछ नहीं होता। अलिपत रहन दी जाच सीखनी। असी निक्की निक्की गल ते क्रोधित हो जाते हैं ना, समझ ही नहीं ना आ रही। आप उतरे उस पिछे डुबदे भी तरना, उहदे इंद्रे ज्ञान इंद्रे सारे रोम रोम जिहड़े सारे डुब रहे सन, इन्हों तारण योग हो जाता है। किसी होर नूं नहीं तार सकते। जे मैं सोचा भी मैं वोटी नूं तार लाँगा, बच्चों नूं तार लाँगा, इम्पॉसिबल, कोई किसी नूं तार नहीं सकता। पर कई बीबियां नूं भुलेखा लैंदा है, जदों मेरा पति सुधर जाएगा तां असीं सीधे पासे पवांगे। पति सुधरेगा नहीं, तू सीधे पासे टुरेगी नहीं। ते कई पति कह रहे होंदे ने, जदों मेरी वोटी सुधर जाएगी। ए वोटी, बच्चे, माँ प्यो, भैन भरा, किसी ने सुधरना नहीं है। बी सेल्फिश इन पॉजिटिव सेंस, टू राइज, टू एलिवेट, टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, टू बी स्पिरिचुअल। हर नाम जपै आप उधरा, उस पिछे डुबदे भीतर। नानक ज्योतिष भावै सो करे। ज्योतिष भावै रब जी नूं नहीं कह रहे ने। जिस मन नूं निज घर दी ए मत पसंद आवे, भावै कहलांदा है। मैनू तुहाडी मत पसंद आई, असीं इस गल दी बार बार विचार कर चुके हैं, एक बारी फिर करते हैं। दातै दात रखी हाथ अपना, जिस भावै तिस देई। इहदे अर्थ असीं समझदे सां, रब जी ने दात रखी हुई है, रब जी नूं जिहड़ा चंगा लगदा है उहनूं दिंदे ने। जिहड़ा सवेरे उठ पिया, अमृत वेले उठना चाहिए, पर सिर्फ सवेरे उठण वाले नूं दिंदे ने, बाकी नाल रुस जाते हैं। जिहड़ा ठंडे पानी नाल सिर धो के आवे, जिहड़ा नंगे पैर आवे, जिहड़ा 40 दिन आवे, जिहड़ी एक माला फेरे,
ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਚੁਅਲ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਹ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਪੇ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਕੁੱਟਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ 60% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਬਾਕੀ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਣ। ਰੱਬ ਜੀ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਏ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੇਂ ਦਾ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਤੇ ਤਿਸ ਦੇ, जिस पावे जिस किसी को ये दात पसंद आवे, जिस पावे जिसको पावती है, जिसको दात, दात मीन्स विजडम वाली मत, जिस पावे तिस दे ओनू दे देंदे ने। नानक जो तिस पावे सो करे, जो दे सो सहना। जिसनों सतगुर की मत समझ आ जाती है, वो सतगुर की मत का सुनिया लैके इसनों जरदा है, इसनों सहता है, इसका हंकार नहीं करता। जे मैं कोई चीज़ लवां मैनू प्राप्त होवे और उन्होंने मैं सह ना सका, जर ना सका, अमीरी जिमें होती है, दिखावा करांगा जरूर ना, लोकी की कहन के। इतने वड्डे होके इन्हां दे अपने पापे दे भोग ते इन्हां ने चंदन दी लक्कड़ नहीं लगाई, ना इन्हां वड्डा रागी नहीं बुलाया, ना इन्हां अखंड पाठ नहीं कराया, लोकी की कहणगे। इस तरह हुंदा ना, वो जर नहीं ना सक रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, पर चंगी मत लैके उहदा हंकार ना करना होंदा ही नहीं। क्या थोड़ी बात गुमान, उहदे कोल गुमान होंदा ही नहीं, वो इसनूं जीउंदा है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰ ਤੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਖੀਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਐਸਕੇਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ही असली धर्म होता है। दैट इज द स्पिरिचुअलिटी व्हेन वन इज नॉट हुक्ड अप विद द पास्ट एंड वन इज नॉट वरीड अबाउट द फ्यूचर, वन इज इन नाउ, हुणे अज एट प्रेजेंट। अपने आप को पास्ट और फ्यूचर तो विच लैके आना ही ते जाच है, एक धर्म है। जो तिस पावै सो करे, जो दे सुख सहना। इस वार दी पौड़ी, हर का सब शरीर है, हर रब रिया सब आप है। रब जी इस शरीर अपने नियम अनुसार रहते ने, इस मन नूं समझ आ गई है खेड। आखिरी पंक्ति, सब किछ हर का खेल है, गुरमुखी से बुझाई नूं समझ आ गई कि हर का सब शरीर है, हर रब रिया सब आप है, हर की कीमत ना पवै, किछ कहण ना जापै। एक कहंदा है मैनूं समझ ते आ गई है, मैं किसी नूं बयान नहीं कर सकता कि मैनू की समझ आ गई है। मैं हंकार नहीं कर सकता कि मैनू नम्रता आ गई है। मैं हंकार नहीं कर सकता कि मैं अपने क्रोध नूं काबू कर लिया। किस वेले समझ आई सी? जिस वेले मैनू सच समझ आई सी, वो वेला नहीं मैं बयान कर सकता। उत्थे तवार ना जोगी जाना, रुत माना कोई। मेरी नवी जी सृष्टि बनी है ना, जहाँ करता सिठी को साजे, आप जाने सोई। रब जी ने मेरी सृष्टि किस तरह साजी है, मेरा मन बयान नहीं कर सकता। कवण सुवेला, वक्त कवण, कवण थित, कवण वार, किस वेले सच समझ आया सी, उस तक कोई वेला नहीं होता। मैं बयान ही नहीं कर सकता कि 6:29 ते मैनू गल समझ आई सी। मैं बयान ही नहीं कर सकता कि सोमवार समझ आई सी कि शनिचरवार समझ आई सी। मैं बयान ही नहीं कर सकता कि सर्दियां समझ आई सी कि गर्मियां, पोह या माह या संग्रांद या मस्या या पूर्णमासी कदों समझ आई सी। बयान नहीं कर सकता कि मेरी नवी सृष्टि कदों। व्हेन आई वाज ट्रांसफॉर्म्ड, नोबडी कैन क्लेम। इफ वन इज क्लेमिंग, समझ आया ही नहीं है, हंकार हो गया। ये बयान ना कर पाना, बियॉन्ड योर एक्सप्लेनेशंस। दूजे नू किस तरह किस वेले समझ आ सकी है, तू नहीं बयान कर सकता। वो तैनू नहीं बयान कर सकता, तू उसदे बारे नहीं बयान कर सकता। सो डोंट जज अदर्स, नेवर जज अदर्स। जज करेगा, मिस जज करेगा।
हर की कीमत ना पवे किच कहण न जापै, गुर प्रसादी सलाही है। सलाह का मतलब होंदा है मशवरा, चंगी कीमती एडवाइस। असी सलाह का मतलब समझते सी वाह वाह करना। गुर प्रसादी सलाही है, सतगुर की मत दे नाल जिहड़ा मशवरा सुनिया सच दा मिलता है, जिहड़ा नानक आखै रे मना सुनिया सिख सही, जिहड़ा इस शब्द के अखीरली पंक्ति च किया कि गुर प्रसादी, वो गुरमुख नाल समझ आ जाती है, गुरु दे मुख तो निकली हुई गल समझ आ जाती है। गुर प्रसादी सलाही है, हर भगती रापै। हर भगती रापै की होंदा, वो इस तरह हमेशा बैठा नहीं रहिंदा। असी अखां नूटण नूं, चौकड़ा मारन नूं भगती समझते सा। गुरमत अनुसार भगती की होंदा है? गुरमत अनुसार भगती होंदा है, भगत कोई मनुख नहीं होंदा। किसी इंसान को भगत नहीं बोलते हैं। गुरमत अनुसार जदों मेरा मन निज घर चों सच दे सुने दा दुध लैंदा है, सच दे सुने दा अमृत लैंदा है, उस दुध उस अमृत नूं सारे इंद्रे ज्ञानेंद्रियां नूं जदों वंडदा है, उस वंडण दी क्रिया नूं भगती करना कहते हैं। रब्बी गुणा दा सुनिया लैंदा है, रब्बी गुणा नूं संतन कहते ने। रब्बी गुणा दे नाल हमेशा जीण दा जिहड़ा संग कीता जांदा है, कंपनी, उहनूं संतन संग कहते ने, साध संग कहते ने। उस सुने नूं बाकी इंद्रे ज्ञान इंद्रियां नूं वंडदा है। ये नेत्रों मेरे और तुम मैं ज्योतरी हर भी नंबर न देखो कोई, इस श्रवणों मेरो साचा सुनन नो पठाए। इस तरह अपने सारे पूरे इस जग शरीर नूं ना सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ सच ਦਾ सुनिया विंडदा है ना, ये मन उस वेले भगत होंदा है ते भगती करदा है कि सारिਆਂ ਨੂੰ रब्बी गुण वंडदा है। वरना विण गुण कीते भगत ना होए। रब्बी गुणा नाल नहीं जींदा ना, तब भगती नहीं हो रही। इफ यू आर लिविंग विद, इफ यू आर अबाइड विद, इफ यू आर ट्यून्ड विद गॉडली क्वालिटीज, ये अपने आप में भक्ति है एज पर गुरु नानक सच की थ्योरी, सच दा मैसेज, रब्बी गुणा दा सुनिया। इस तरह वो हमेशा करता है। सतगुरी मत नाल सुनिया लैके एडवाइस लैके चंगे गुण अपने इंद्र ज्ञान इंद्र नूं वंडदा है। सब मन तन हरिया होया, वो सुके तो हरा हो जाता है। सूके हरे किए खिनमाए, यही असी अपने लिविंग ट्रेजर का लोगो रखे है। सच की मत लैके सुके तो हरे हो जाते। हाँ, गुरप्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया। वरना प्रेत पिंजर में काष्ट पिया, मैं शील संजम नहीं किया ना, तब मैं प्रेत हाँ, पिंजर हाँ, लक्कड़ हाँ, यह मेरा जीवन हो गया। गुरमत अनुसार किसी नूं प्रेत नहीं कहते ने। गुरमत अनुसार भूत प्रेत जिन बेताल चुड़ैल कुछ नहीं होता है। मेरा जीवन कोई सो कार्ड अपने आप को मनुष्य इंसान कहने वाला जब सीधे रास्ते पर नहीं चलता, टांगे टेढ़ी कर लेता है, पुट्ठे राह चलता है, उन्होंने कहते हैं चुड़ैल के पांव उल्टे होते हैं, उन्होंने कहते हैं भूत प्रेत डिंगे टुरते हैं, उन्होंने कहते हैं। वरना किते भांडे खड़क गए, भूत आ गए, रूह आ गई, गुरमत मनती नहीं है। सच दा जीवन मैं नहीं जींदा ना, मैं पूतना बेताला वाला जीवन जींदा हाँ। प्रेत पिंजर में काष्ट पिया, मैनू सतगुर दी मत लो, गुरप्रसाद परमपद पाए, सूके काष्ट मेरी सुक्की लकड़ नूं हरा कर दिंदे हो, ये सुमत बख्शते ने रब जी। सब मन तन हरिया होया, अंकार गवाप है। जदों अंकार जाता है तां हरे होंदे आ, वरना अहंकार मनु सुके बांस वांगू रखता है। बांस बढ़ाई बूढ़िया एवं मत डूबो कोई, चंदन के निकटे बस है, बांस सुगंध ना होए।
किसी दा पति चंगा हुंदा है, पत्नी नेड़े रह के और बच्चे नेड़े रह के सच नहीं सीखते ने। किसी दी पत्नी चंगी हुंदी है, पति नेड़े रह के खून चूसदा रहिंदा है पर सच नहीं कदे भी लैंदा। कदे बच्चे माँ प्यो कोलों नहीं लैंदे। कई बारी बच्चे सुधर जाते हैं, माँ प्यो उन्हां दा नहीं लेना चाहते हैं, कहते सानू पढ़ाण आए हो। लेकिन असी सारे गुरु ग्रंथ साहब चंदन कोल रह के भी जदों आकड़े रहिंदे आ। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, कबीर जां दिन हो मूआ पाछे पिया आनंद। यह हों कदों मरदा है? जदों मनु सच दा सुनिया देण वाला फरिश्ता वाली अकल समझ आती है। उन्होंने अजराइल फरिश्ता कहते हैं अज के शब्द। अजराइल फरिश्ता का मतलब नहीं होता, एक भगवान जी का दूत है, उसको अजराइल फरिश्ता बोलते हैं, और वो तुमको जबरदस्ती इस धरती से मार के ले जाता है। वो गल नहीं चल रही। मेरे मन में जो जीवतियां मर रही है दी मत समझ आती है ना, वो मानो अजराइल फरिश्ता की मत प्राप्त हो गई। जीवतियां मर रही है दी समझ आ गई। उन्होंने एंजल कहते हैं, उन्होंने परी कहते हैं, उन्होंने राग रतन परिवार परियां शब्द गावण आईयां कहते हैं। इस करके जो बच्चे नूं माँ लोरी दिंदी है ना सच दी, जिस तरह साडी कैसेट बनी सी लोरी सोहेला, तो उस वेले माँ बच्चे वास्ते परी होंदी है, क्योंकि माँ बच्चे नूं लाड नाल लोरी सुना रही है। कोई गाने गुणे नहीं सुना रही, लोरी सुना रही है सच दी। अज दी माँ तो सीरीयल देखती रहती है, बच्चे नूं कहंदे तुम जाके सो जाओ, ये उन्होंने सोहेला सुनाती है, उन्होंने थापड़ा दे जाती है, बाणी पढ़ी जाती है। वो माँ उस वेले बच्चे की माँ परी होंदी है। सब मन तन हरिया होया हंकार गवापे। कबीर साहब कहते ने जां दिन होमुआ पाछे पिया आनंद। फायदा की होया, मोह मिलियो प्रभ अपना, मेरे अंदर भगवान जी रहते हैं, मिल गए। संगी ए सारे इंद्रे ज्ञानी इंद्रे, संगी भजै गोबिंद, सारे इस पासे चल पैंदे ने। आनंद आ जाता है जो इंद्रे ज्ञानी इंद्रे सारे सीधे पासे टुर पैंदे ने। सब कुछ हर का खेल है, गुरमुख की जय बुझाई। इस बुझाई का राइम पिछली पंक्ति नाल मिल नहीं रहा, पर वह सार है, असी उसनों समझना है कि उसनों समझ पै जाती है। उसनों ये गल समझ पै जाती है कि रब प्रतिपालक है, रब प्रतिपालना करता है। असी प्रतिपालना समझते हैं कपड़े दे देता है, मकान दे देता है, कार दे देता है, रोटी दे देता है, पानी दे देता है। असी इनू प्रतिपालना समझते हैं, पर प्रतिपालना की है, मैनू रिजक दा भोजन दे देता है और मेरी पत नू जमा वाली मत तो लुटे जान तो ढक्कण दा कपड़ा दे देंदा है। उन्होंने प्रतिपालक कहते हैं धार्मिक दुनिया विच, गुरमत अनुसार दैट इज कॉल्ड प्रतिपालक। वरना जेडे लोग रब तो मुनकर ने रोटी वो भी कमा लेंदे ने, रब तो मुनकर ने कपड़ा उन्होंने कोल भी होंदा है, रब तो मुनकर ने मकान उन्होंने कोल भी होंदे ने, रब तो मुनकर ने कारां उन्होंने कोल भी होंदियां ने। इसी करके एक बच्चे ने किसी फिलोसफर ने पूछा, तुमको रात को सोते हुए डर नहीं लगता? बच्चा सिंपली कहता मैं अपनी मम्मी के साथ सोता हूँ। उन्होंने किसी ने पूछा, तुम भगवान की प्रार्थना नहीं करते कि भगवान तुमको रोटी दे? कहता नहीं, मेरी मम्मी रोटी पका देती है। कितना सिंपल बच्चे का जवाब है। लोग समझते हैं रोटी देता इस करके रब याद रखना है, किसी वेले मेरी मुश्किल हल कर देती सी इस करके रब याद रखना है। पर जे तेरी मुश्किल हल नहीं हुई फिर रब जी नहीं हन की। तेरी मुश्किल एक समाजिक सिस्टम में क्रिएट हो गई है। डोंट टॉक अबाउट गॉड सब्जेक्ट टू योर सफरिंग्स। हुण असीं शब्द दे विच आंदे हां। नानक जी आखते हैं, नानक आखै रे मना सुनिए सिख सही। केड़ी वाली? निज घर चों अंतर आत्मा च जिहड़ी आवाज़ सुनते हैं ना, वो सुनीदा है, वो सुनन दे नाल फायदा हो जाता है। दाते ने वो वही वो वाली सच की मत रखी हुई है, उसनों सुनना चाहिए। वही होता है इल्हाम, वही होता है रब्बी सुनेहा। रब्बी होता है वही होता है जैसी में आवे खसम की बाणी। असी वही समझ रहे सी चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक मुंशी का बनाया हुआ लेखा, वो लाल किताब।
इत्थे कहने नानक आखै रेमना सुनिया सिख सही लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। पहला थोड़िया टर्म्स समझ लिए बस फिर शब्द सौखा हो जाएगा। वही होंदा है करतार वल्लों आख्या होया सच दा सदा सुनेहा तुर की बाणी कॉन्शियस दी आवाज़। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸੱਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਗੈਟਸ ਦਿਸ ਮੈਸੇਜ बट वी इग्नोर दैट, वी डोंट वांट टू लिसन। मेरी ज़मीर मेरी विल मेरे अंदरों रब जी कह की रहे ने, मैं उस आवाज़ में दबा दिंदा हाँ। आवाज़ आती रहती है पर मैनू दबाण की आदत पै जाती है। आवाज़ आती रहती है फिर मैनू आस्ता आस्ता सुनन की जाच भुल जाती है। इस करके मैनू सुनिया सिखाया गया। पहला सतगुर की मत नू सुनना सिख। इट इज़ अवेलेबल। आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। होसी भी सच का मतलब सच हो नहीं जाएगी, नहीं तू जे सच ले लवे तो तू भी सच हो सकता है। पर आवाज़ तो हमेशा आती है। रब जी सतगुर मेरा सदा सदा है ना, ये गुरमत का कानून है, ये गुरमत का खरा सिद्धांत है कि रब जी कदी आए ने कदी चले जाएंगे, या सतगुर जी आए ना चले जाएंगे। नहीं, सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, इटरनल है। सच का मैसेज इटरनल है, इनएविटेबल है, ऑलवेज अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग है, प्रिवेलिंग है, सब जगह खरा सच अवेलेबल है। क्योंकि बलिहारी कुदरत वसिया रब जी हमेशा वसते हैं, खरा सच हमेशा सच रहता है। तलबा तलबा कहते ने सदा, सच दा सदा। जदों असीं पढ़ांगे ना केतिया दूख फूक सद मार, वो सद मार सच दा सुनिया हमेशा मिलता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दुख रब जी तो विछोड़े की मत समझ आ जाती है, भूख साचे नाम की भूख लग जाती है। जिस मैसेज को सुन के रब्बी विछोड़े की मत समझ आ जाए, वो वाली स्टेट वो वाली अवस्था समझ आ जाए कि मैं रब जी तो विछड़िया। जिसनों सुन के सच्चे नाम की भुख लग जाए, वो रब जी का सद्दा होंदा है, रब जी की दात होंदी है। कार दे पिछे लिख देना ये भी दात तेरी दातार, या मकान पिछे लिख देना ये दातां की गल नहीं चल रही। ये वाली दात है कि मैनू समझ आ गई मैं रब जी तो विछड़िया, नाउ आई विल नेवर वेस्ट माई टाइम। पर ये समझते मैनू आवे, एक ख्याल तो आवे मैं आई एम डिपार्टेड फ्रॉम रब जी, मैं मिलना चाहता। कीर्त कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम, चार कुंट दे दिश प्रभ में थक आए प्रभ की शाम। मैं विछड़िया होया विछड़ी हुई हाँ, वैसाख तीरन क्यों वाडिया, जिन्ना प्रेम बिछो आई एम डिपार्टेड, आई रियली वॉन्ट टू मीट, मनु विजडम दो। ए दात है, ये भी दात तेरी दातार, कि वाला ख्याल आ जाए। सदा तलबा मन की मत दे नाल तलबा नहीं बनती, मन की मत ते मूर्ख दियां गल्लां सुनदी है। जिहड़ा तेरे नाल अंदर लिखिया है ना उसनू सुनना। आकिया होंदा है बुराई अवगुण, रजा दे विरुद्ध जीना, बागी हो जाना, बेवफा हो जाना, सच दा वफादार ना रहना, हुक्म मनण तो आकी हो जाना, अवगुणी ख्यालां नाल जीना। हुण इस शब्द राही सानू बाकी हिसाब करन तो बाद जिहड़ा बैलेंस बचदा है उसनू बाकी कहंदे ने। विजडम दे नाल हिसाब बचदा नहीं है, जीरो हो जाता है। धर्म राय दर कागज फाड़े जन नानक लेखा समझा हो जाता है। ना जम कान ना जम की बाकी, तज अभिमान छुटे तेरी बाकी। बाकी की है अवगुण छुट जाते हैं, बैलेंस कोई रहिंदा नहीं है। हुण इस तो पता लगा नानक जी आखदे हन ए मेरे मन तेरे सामने दोनों लेखे ने। तू मन का लेखा लिखदा है तो मन तू क्या लेखा पढ़िया, लेखा देना तेरे सिर रहा। थां थां ते तैनू क्रोध अपसैट लालची क्रोधी तू डिफिकल्टी च रहिंदा है, औखियां घड़ियां च पिया रहिंदा है अपने कारण। मन का लेखा वर्सिस नीच कर दे रब जी का लेखा। रब जी का लेखा समझ आ जाए ना, धर्म राय दर कागज फाड़े जन नानक लेखा समझा। एक बार नीच कर दी गल समझ लो ना, फिर लेखा मुक जाता है। फिर कागज कलम ना लिखण हार रहा ही नहीं, वो कलम भी नहीं रही जिहड़ा मेरा मन वरतदा सी, कागज भी नहीं रहा जिहदे ते लिखदा सी, क्योंकि मेरा मन ही चला गया। मन ही सच च मर्ज हो गया, ना कागज रहा ना लिखण वाला रहा ना कलम रही।
ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇਖ, ਜੰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਰਸਿਸ ਵਰਚੂਸ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਂ ਸਹੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ। ਬੈਠਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੁਨੇ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਵਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਸੱਦਾ, ਉਹਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। फ्यूचर टेंस नहीं है। जदों आएगा पांडा अच्छा सोए ज्योतिष पावसी, वो बर्तन अच्छा हो जाएगा जो उसको पसंद आएगा। सी फ्यूचर टेंस नहीं है। अर्थ बनते ने पांडा अच्छा सोए ज्योतिष पावसी, मीन्स जो पांडा अच्छा है वो उन्होंने पाउंदा है। सी दा मैना है। पांडा आत्मलीन तोता अच्छा ना होई सी, मीन्स धोने से अच्छा नहीं होता है, धो लो तो अच्छा हो जाता है। एत द्वारे धोए अच्छा होए सी, गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी। ये सारा तेनू समझ आ जाए, प्रेजेंट टेंस विच गल चल रही है, फ्यूचर टेंस विच नहीं। बस फिर मनुख भांडा सीधा हो जाता है, मत पै जाती है। कहते ने तलबा पौसन आकियां सच दा सुनिया सुनाई देंदा है। जो अवगुणा वाला जीवन जी रहा सी और अवगुणा तो जिहड़ा खुआरी नूं पहचान लैंदा है, उन्होंने सच दा सुनिया सुनाई दे जाता है। और सच दा सुनिया सुनन सार उसनूं एक सत्संग जी मैं हैरान रह गया कि रही दे अर्थ की होंदे ने। रही दे अर्थ होंदे ने अवगुणा वाला जीवन खत्म हो गया, बाकी जीना रही। जिनके बैलेंस में कुछ भी अवगुण थे ना, खत्म हो गए, मुक गए, मुक जाते हैं। सुनिए सिख सही, सच सुन लेंदे हैं ना, फिर अवगुण मुक जाते हैं। जो अवगुणा का बैलेंस मुकाउना वो सदा सुनाई पै गया। और जदों असी सच सुन लिया, शर्त है जे सच सुन लिया ना, फिर अवगुण छुट्टणगे, क्योंकि सच दे नाल अवगुणा दी छत उड़ जाती है। देखो पाई ज्ञान की आई आंधी, सब उड़ानी भ्रम की टाटी, रह न माया बांधी। फिर अवगुण चले ही जाते हैं। रब्बी लेखे च एनालाइज करो ना, कूड़ जमा वाली ईवल्स नूं कोई थां रहिंदी ही नहीं। तलबा पौसन आकियां बाकी जीना रही। अजराइल फरिश्ता होसी आए तई। तई की हुंदा है? त्यार, पकाउणा, किसी नूं तपश दे के पकाउणा। सानू तपश किवें दित्ती जांदी है? जत पहारा, धीरे सुनियार, ऐरण मत, वेद हथियार, भाऊ खल्ला, अगन तपताओ। सेक दे के, जिस तरह माँ के पेट विच गर्मी दे के बच्चा बनता है, इस तरह तैनू जैसी अगन उनमें तैसी बाहर माया। इस सारे दे सामने तैनू सतगुर दी मत दी टकसाल दे अंदर तेरी सुरत मत बुद्ध नूं जदों घड़िया जांदा ना, इनू तई कहते ने। तैयार किया जाता है, टकसाल अंदर घड़िया जाता है, पकाया जाता है। वंस यू आर प्रिपेयर्ड टू रेक्टिफाई योर अवगुण, दैन सच दा सदा एंजल बन के तैनू ठीक बना देंदा है, पका देंदा है, सुभाह नूं दृढ़ करा देंदा है। अजराइल फरिश्ता होसी आए तई। रब्बी लेखे दा सदा सुनो तां कूड़ छुट जाती है। पक गए ना, जदों सोने ते विच इंप्योरिटीज़ होंदियां ना, इसनूं जदों थल्लों ताप दिता जाता है, इहदी इंप्योरिटीज़ सड़दियां जांदियां। हुण ये पक गया, कूड़ निकल गई। आवन जान ना सूझी। अदरवाइज की होता है? अदरवाइज तेनू पल पल जिहड़ा जमदा मरदा हाँ, इहदी सोझी नहीं पेगी। ये उस मन नूं समझ आ गई है। आवन जान ना सूझी, पीड़ी गली फही, पीड़ी गली हो जाती है। असी कल भी ये शब्द पढ़िया सी और अज इथों असी शुरुआत की सी। की कर छड़ दुनिया, छड़ दुनिया, छड़ छड़
दुनियादारी दे ना सारे ख्याल छड्ड दे, ए दिखावा शो ऑफ छड्ड दे। पता है की कर, अपना जीवन सुखी करना चाहता है, कपड़ सुहावना वाला आनंदमय जीवन जीना चाहता है, अंदर जावना, अपने अंदर जा, इंट्रोस्पैक्शन कर। अंदर रब जी रहते ने, तेरा दिन रात कशमकश रहती है ना, यू आर अपसैट कि सच के पासे जाऊं कि झूठ के पासे जाऊं, हर वेले अपसैट रहता ना, कन्फ्यूज रहता, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। तेरे ना झगड़ा एक निबेड़ू राम, तेरा झगड़ा निबेड़िया जा सकता है, पर यदा निबेड़ा कितने होएगा? मन मेरे भूले कपट ना कीजिए, अंत निबेड़ा, आखिरकार तेरा निबेड़ा ना अंदरों होएगा। अंत निबेड़ा तेरे जीए पे ले जाए, अंदर जिथे रब जी रहते ने उन्हां कोलों निबेड़ा कराने दी मत ले लेना। अंत निबेड़ा, आखिरकार निबेड़ा तेनू कित्थों नहीं मिल सकता। नीच कर अंदर जा, अंदर जावना, ज्यों ही अंदर जाइए ना, पता है की हुंदा है? मंदा चंगा चंगा समझ आ जाता भी, जे मैं सुखी हाँ तो मैं सतगुर की मत ली होनी, कोई वर्चूज ले होने जो मैं सुखी हाँ। जे मैं अपने मन की मत, जमा वाली मत लैंदा जिहदे नाल मैनूं लेखा बार बार पैंदा सी, मेरी आत्मक मौत हुंदी सी पल पल, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं दुखी ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ किसी ते दुखी करने ਨਾਲ दुखी नहीं ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। मैं दुखी ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣੇ, जो मैं किया की होता है? जैसा फलसफा मैंने जिया, जो मैं किया सो मैं पाया। दोष ना दीजिए आवर्जना, मैं फिलॉसफी लई ही मन की मत दी सी, सतगुर दी मत दी लवो तो सुखी हो जाते ने। एक कुदरत दा नियम है, श्लोक पवन गुरु पानी पिता विच, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, then we will never blame on others। फिर असी दूजियां ते ब्लेम लाना छड्ड देंगे, एस्केपिज्म नहीं करांगे। अपने अंदर तो चला गया, मैनू अपने बारे सोचना है, बस सुहावना जीवन जो जीना है मैनू, आनंदमयी। मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना, वरना की होंदा है? हुक्म किए मन पावदे, रापीड़े अगे जावना, नंगा करता रहता है, अपनी इंट्रोस्पैक्शन कर, ये छोड़ दे। इनू छोड़न वास्ते निज कर तो अजराइल फरिश्ता दा, सच दा, आत्मक मौत मरण के बदले जीवत्या मर रही है सुनिया तेनों सुनाई देंदा है, वो सुन लवो तो फिर अगों दे चेती है, तकायत मिले सजाए फिर सज़ा नहीं मिलती है। इस करके इस विच कहते ने, जे तू अवगुणा वाला जीवन हुक्म की मन भावदे वाला जींदा ना, तो भीड़ी गली हो जाती है। कबीर मन तो मैगल होए रहे हो, मेरा मन हाथी हो गया। हुण की होया? मुकत द्वारा संकड़ा हो गया। कबीर मुकत द्वारा संकड़ा, टाइट हो गया, मुक्ति का दरवाजा ऐसे टाइट हो गया, संकुचित हो गया, छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया? मेरा मन हाथी बन गया, इतना बड़ा हो गया, अहंकार में हो गया ना। अब मुकत द्वारा संकरा राई दसवें पाए, मन तो मैगल हुए रहे हो, मैगल हाथी बन गया। हुणे लोकी मरण तो बाद हाथी समझते सी, कबीर साहब कह रहे हैं अब भी मेरा मन हाथी हो गया है, अब मेरे को मुक्ति का दरवाजा छोटा हो गया है, इसमें से मेरा मन हाथी निकलता नहीं है। मुकत द्वारा संकरा राई दसवें पाए, मन तो मैगल हुए गयो, क्यों कर निकसे जाए? कैसे निकले? उन कहते ने
मुकत द्वारा मोकला हो सकता है। ऐसा सतगुर जे मिले तुठा करे पसाओ, मुकत द्वारा मोकला भावे आओ जाओ, जिस तरह मर्जी कर लो तुसी। फिर आना जाना सौखा हो गया, बिल्कुल सिंपली इस मुकत द्वारे तो लंघ के जा सकते हाँ, क्योंकि मुकत द्वारा मोकला हो गया, खुल गया, वड्डा हो गया। पर जदों असी कहते हैं ना फलाना उस वेले बड़ा कसूता फसिया, वो की फसिया, अपना बोलिया होया झूठ जदों सामने आया ना, मुँह छुपाण नूं मिल नहीं सी रहा, फसिया ना। वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल कत चलाया। ए जींदे जी सानू जमा दी फाई पैंदी है। मनो दिन जे 15 कार्ड आ जान, मेरे 24 घंटे च मैं 6-8 घंटे सोना भी है, नहाना धोना भी है, बड़े सारे काम करने, पर मनु अपना दुनियादारी निभानी ची मेरी वारी नहीं आती। यही होंदा ना लोगों नूं जेड़े हफ्ते बाद सिर विच डाई करते हैं ना, उन्होंने जो कार्ड आ जाए बेचारों सब तो पहले मुसीबत शुरू हो जाती है। माई गॉड 3-4 घंटे तो मैंने लग जाएंगे, मैं मेहंदी लानी है, धुप्पे बहना है, मैं वाल काले करने, धुप्पे बहना, किस तरह जावांगे। पर जिन्होंने 6-7 कार्ड आ जाने एक दिन दे, वो बेचारे कितनी बारी रंगणगे, कितनी बारी बार बार कपड़े बदलणगे। ए सारी दुनियादारी निभाते हुए ना यह गल संगल कत चलाया। वड्डा हुआ दुनीदार कहते आवन जाना सुझे पीड़ी गली फही, हुण ना ए जै खिंचे तो जाऊँ बन गया तेरा। विकार रूपी कतूरे तेनों खिंच रहे ने। कूड़ निखुट्टे नानका आखिरकार समझ आ जाती है जदों सच सुन लवो कि कूड़ आखिरकार उतर जाती है। एक पंक्ति होर सांझ कर लवां, असीं कहंदे हुंदे सी जे को बोले सच कूड़ा जल जावी। वो अगर कोई सच बोलता है ना तो जो इंसान अंदर से कूड़ा होता है, झूठा होता है, वो जल जाता है, सच सुनना मुश्किल हो जाता है। असी ये अर्थ समझते सा। दरअसल की है जे को बोले सच, अंदरों जो सच सुनाई देंदा ना मेरे मन का कूड़ा सड़ जाता है। जे को बोले सच कूड़ा जल जावे। कूड़ा की है? जपजी साहब का पहला सवाल, किव सचियारा किवें सचियारा हुआ, किवें मेरी कूड़ खत्म होए। अंदर नानक लिखिया नाल सच लिखिया होया है, उसनों सुन लो कूड़ खत्म हो जाती है। जे को बोले सच कूड़ा जल जावे। उस पासे सीधे पासे टुर पैंदे आ कूड़ खत्म हो जाती है। कूड़ निखुट्टे नानका ओढ़क आखिरकार फाइनली सच ही रहता है, क्योंकि अंदर भी हमेशा सच ही वसदा है। वही तो रब रहा है, उस तो मुनकर नहीं हो सकते। सच तो मुनकर होना, हुक्म तो बाहर जीना है। निज घर के अंदर सच्ची सिक्ख्या दी जाती है, उसनों सुन लो। उन्होंने उस मैसेज ਨੂੰ गुरु के मुख तो निकलिया है मैसेज कहते हैं, उन्होंने सुन लवो तो अजराइल फरेश्ता वाली मत आ जाती है। मन की मत वालों जमा वाली मत वालों मर जाता, कूड़ छूट जाती है और आनंदमयी जीवन बन जाता है। कूड़ निखुट्टे नानका ओढ़क सचरी, सच भी समा जाते हैं। उन्होंने जोत ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम कहते हैं।